لبیں آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم اردو قواعد سے، جو کہ یہ ہمارا سبق نمبر 11 ہے، آج ہم سیکھیں گے جملے کے اجزاء کتنے ہیں۔ جملے کے اجزاء کتنے ہیں؟ فاعل، مفعول اور فعل کی تعریف اور مثالیں۔ فاعل، مفعول اور فعل کی تعریف اور مثالیں۔ معنی کے لحاظ سے فعل کے اقسام کتنے ہیں اور وہ کون سے ہیں؟ اس کے بعد ہم سیکھیں گے فعل معروف کیا ہے اور فعل مجہول کیا ہے، ان کی تعریفیں کیا ہیں اور ان کی مثالیں کیا ہیں۔ آج کے سبق میں سیکھیں گے۔ یہ بہت ہی اہم لیسن ہے، یہ بہت ہی اہم سبق ہے، کیونکہ اس کے تحت TRT، ٹیٹ اور مختلف ایگزامز میں سوالات پوچھے گئے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم جملے کے اجزاء کتنے ہیں دیکھتے ہیں۔ جملہ، ایک جملہ عام طور پر 3 اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک جملہ عام طور پر 3 اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ فعل، فاعل، مفعول۔ ایک جملے میں 3 اجزاء ہوتے ہیں، فعل، فاعل اور مفعول۔ اب ہم جملے کی ترتیب کو دیکھیں گے کہ ایک جملہ کس ترتیب سے بنتا ہے، جس میں فعل، فاعل اور مفعول کا استعمال کس طریقے سے ہوتا ہے۔ جملے کی ترتیب: نجم السحر سبق پڑھ رہی ہے۔ نجم السحر سبق پڑھ رہی ہے۔ یہاں پر نجم السحر فاعل ہے اور سبق مفعول ہے اور پڑھ رہی ہے فعل ہے۔ نجم السحر فاعل ہے، سبق مفعول ہے، پڑھ رہی ہے فعل ہے۔ اب ہم فاعل کسے کہتے ہیں، مفعول کسے کہتے ہیں اور فعل کسے کہتے ہیں، تعریف اور اس کی مثال کو دیکھیں گے۔ نجم السحر یہاں پر فاعل ہے، سبق مفعول ہے اور پڑھ رہی ہے فعل ہے۔ اب فاعل، مفعول اور فعل کی تعریف کو دیکھیں گے۔ فاعل کی تعریف اس طرح ہے کہ فاعل وہ اسم ہے، اسم یعنی نام، فاعل وہ اسم ہے جس کے ذریعے کام انجام پاتا ہے۔ یعنی فاعل وہ اسم ہے جس کے ذریعے کام انجام پاتا ہے، یعنی اسم سے مراد نام۔ چلیے اس کی مثال دیکھتے ہیں ہم یہاں پر۔ یعنی کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر یہاں پر تقی نے خط لکھا۔ تقی نے خط لکھا، یہاں پر کام کا کرنے والا تقی ہے، اس لیے یہ تقی فاعل ہے۔ اسی طریقے سے ارشد کتاب پڑھے گا، یہاں پر کتاب پڑھنے والا یعنی کام کرنے والا ارشد ہے، اس لیے یہ فاعل ہے۔ تیسری مثال اس طرح ہے کہ لڑکے تیر رہے ہیں۔ لڑکے فاعل ہے کیونکہ وہ تیر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اس طریقے سے یہ ہے فاعل، یعنی کام کے کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ چلیے اب ہم مفعول کی تعریف کو دیکھتے ہیں۔ مفعول وہ اسم جس پر فاعل کے فعل کا اثر ہو، مفعول کہلاتا ہے۔ وہ اسم جس پر فاعل کے فعل کا اثر ہو، مفعول کہلاتا ہے۔ مثلا مثالیں دیکھیں گے اس کی۔ تقی نے خط لکھا، یعنی تقی جو فاعل ہے، جو کام کر رہا ہے، اس کا اثر خط پر ہو رہا ہے، اس لیے خط یہاں پر مفعول ہے۔ تقی نے خط لکھا، یہاں پر خط جو ہے وہ مفعول ہے۔ اسی طریقے سے یہ خط مفعول ہے یہاں پر۔ دوسری مثال دیکھیے، ارشیا گیت گا رہی ہے، یہاں پر گیت جو ہے یہ مفعول ہے، کیونکہ ارشیا کے کام کرنے کا اثر یعنی گیت سے ظاہر ہو رہا ہے، اس لیے گیت یہاں پر مفعول ہے۔ چلیے تیسری مثال دیکھتے ہیں یہاں پر۔ احمد نے انور کو مارا۔ احمد نے انور کو مارا، یہاں پر کام کا کرنے والا احمد ہے، اس لیے یہ فاعل ہے، اور انور پر اس کا اثر ہو رہا ہے، اس لیے یہ مفعول ہے۔ تو یہ تعریف تھی مفعول کی۔ وہ اسم جس پر فاعل کے فعل کا اثر ہو اسے مفعول کہتے ہیں۔
चलिए अब हम फेल की तारीफ को देखते हैं। फेल, फेल वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना साबित हो। फेल वो कलमा या लफ्ज है जिससे किसी काम का करना या होना साबित हो। मिसालें देखेंगे। हामिद दौड़ा, यहां पर दौड़ा जो है ये काम है, इसलिए ये इसे फेल कहते हैं। एहसान लिख रहा है, यहां पर लिख रहा है, ये भी फेल है। शादा हंस रही है, यहाँ पर हंस रही है, ये भी एक काम है हंसना। इस तरीके से यहाँ पर दौड़ा, लिख रहे हैं, हंस रही है, ये तमाम फेल की मिसालें हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। माने के लिहाज से फेल की 3 किस्में हैं। माने के लिहाज से फेल की 3 किस्में हैं। एक है फेले लाजिम, दूसरा है फेले मुतादी और तीसरा है फेले नाकिस। फेले लाजिम, फेले मुतादी, फेले नाकिस। अब हम फेले लाजिम किसे कहते हैं, फेले मुतादी किसे कहते हैं, फेले नाकिस किसे कहते हैं और इनकी मिसालें क्या हैं देखते हैं। अब हम देखते हैं फेले लाजिम की तारीफ क्या है। फेले लाजिम, फेले लाजिम की तारीफ यह है कि जब कोई जुमला फेल और फाइल से मुकम्मिल हो तो इस जुमले को फेले लाजिम कहते हैं। जब कोई जुमला फेल और फाइल से मुकम्मिल हो तो इस जुमले को फेले लाजिम कहते हैं। इसकी मिसालें इस तरह है कि नदीम लिखा, यहां पर देखिए नदीम जो है वो है फाइल, नदीम फाइल है और लिखा यहां पर फेल है। इस तरह से जिस जुमले में फाइल और फेल दोनों ही हो उसे फेले लाजिम कहते हैं। चलिए दूसरी मिसाल देखते हैं। बाबर पढ़ा, यहाँ पर बाबर फाइल है यानी काम का करने वाला है और जो पढ़ा है यहाँ पर ये पढ़ा फेल है। इस तरीके से जिस जुमले में भी फाइल और फेल हो उसे फेले लाजिम कहा जाता है। तीसरी मिसाल इस तरह है कि हामिद गया, यहाँ पर हामिद फाइल है और गया फेल है यानी काम है। इस तरीके से ये है फेले लाजिम। चलिए अब हम फेले मुतादी की तारीफ देखते हैं। फेले मुतादी, फेले मुतादी जिस जुमले में फेल, फाइल और मफूल पाया जाए तो उसे फेले मुतादी कहते हैं। जिस जुमले में फेल, फाइल और मफूल पाया जाए उसे फेले मुतादी कहते हैं। मिसाल है यहाँ पर देखिए, हामिद फुटबॉल खेल रहा है। यहाँ पर हामिद जो है वो है फाइल, इसी तरीके से फुटबॉल ये है मफूल यानी काम का असर जिस पर हो रहा है और खेल रहा है ये है फेल। इस तरीके से हामिद फुटबॉल खेल रहा है। इस जुमले में फाइल भी है और मफूल भी है और फेल भी है, इसलिए ये फेले मुतादी है। दूसरा है मुकेश गाना गा रहा है। मुकेश फाइल है, गाना जो है मफूल है और गा रहा है फेल है। उस तरीके से ये चंद फेले मुतादी की मिसालें थी। चलिए अब हम देखते हैं फेले नाकिस। फेले नाकिस की तारीफ इस तरह है कि ऐसा जुमला जिसमें फाइल के फेल का असर दिखाई ना दे बल्कि इस्म की कैफियत जाहिर हो, फेले नाकिस कहलाता है। ऐसा जुमला जिसमें फाइल के फेल का असर दिखाई ना दे बल्कि इस्म की कैफियत जाहिर हो, फेले नाकिस कहलाता है। मिसाल देखिए यहाँ पर अरशद बीमार है। यहाँ पर फाइल के फेल का असर दिखाई नहीं दे रहा है बल्कि इस्म की कैफियत यानी अरशद की यहाँ पर हमको कैफियत मालूम हो रही है जो कि अरशद बीमार है, इसलिए ये फेले नाकिस है। इस्म की कैफियत यहाँ पर जाहिर हो रही है, इसलिए ये फेले नाकिस की मिसाल है। दूसरी मिसाल देखिए। दूसरी मिसाल यहां पर इस तरह है कि शेर जख्मी है। यहां पर शेर इसमें है और जख्मी इसकी कैफियत है, इसलिए ये फेले नाकिस की मिसाल है। अरशद बीमार है, शेर जख्मी है।
फेल के तीनों अकसाम को एक ही मर्तबा देखेंगे। फेले लाजिम की मिसाल इस तरह थी कि नदीम लिखा, यानी इसमें फाइल और फेल दोनों ही होते हैं, इसलिए ये फेले लाजिम है। दूसरा है फेले मुतादी, जिसमें फेल, फाइल और मफूल तीनों होते हैं, इसलिए ये फेले मुतादी है, यानी हामिद फुटबॉल खेल रहा है। ये मिसाल थी फेले मुतादी की। इसी तरीके से फेले नाकिस की मिसाल ये है अरशद बीमार है, यानी इसमें इस्म की कैफियत को बताया जाता है, इसलिए ये फेले नाकिस है। हमने यहाँ पर फेले लाजिम, फेले मुतादी और फेले नाकिस के तारुफ से मालूमात हासिल की है, जो कि ये फेल की 3 किस्में थी माने के लिहाज से। अब हम देखेंगे फाइल के जाहिर होने और ना होने के लिहाज से फेल की 2 किस्में हैं। फाइल के जाहिर होने या ना होने के लिहाज से फेल की 2 किस्में हैं, वो हैं फेले मारूफ और फेले मजहूल। फेले मारूफ और फेले मजहूल, अब हम यहाँ पर इनकी तारीफों को देखेंगे। फेले मारूफ की तारीफ इस तरह है कि वो फेल जिसमें फेल का फाइल मालूम हो फेले मारूफ कहलाता है। वो फेल जिसमें फेल का फाइल मालूम हो फेले मारूफ कहलाता है। अब हम दूसरी तारीफ भी देख लेंगे यहाँ पर, फेले मजहूल। वो फेल जिसका फाइल मालूम ना हो फेले मजहूल कहलाता है। वो फेल जिसका फाइल मालूम ना हो फेले मजहूल कहलाता है। फेले मारूफ और फेले मजहूल को मिसालों के जरिए समझेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जिदवल में इधर है फेले मारूफ और यहाँ पर है फेले मजहूल। खालिद ने खत लिखा, यहाँ पर फेल के साथ फाइल भी है, खालिद फाइल है और लिखा यहाँ पर फेल है, क्योंकि यहाँ पर खालिद फाइल है और लिखा फेल है, यानी फाइल और फेल जिसमें हो उस जुमले को फेले मारूफ कहा जाता है। अब फेले मजहूल की मिसाल देखिए, यहाँ पर खत लिखा गया, यानी यहाँ पर फाइल मौजूद नहीं है, यानी काम का करने वाला मौजूद नहीं है, इसमें खत लिखा यहाँ पर नहीं लिखा गया, इसलिए ये फेले मजहूल है। खत जो है ये खत लिखा गया, यहाँ पर लिखा गया जो है ये फेल है, लेकिन यहाँ पर फाइल मौजूद नहीं है, इसलिए ये फेले मजहूल है। परवीन ने नमाज पढ़ी, यहाँ पर परवीन जो है ये फाइल है और नमाज पढ़ी जो है यहाँ पर फेल है, इस लिहाज से ये फेले मारूफ है। के बाद यहाँ देखिए नमाज पढ़ी गई, यहाँ पर फाइल मौजूद नहीं है, इसलिए ये फेले मजहूल है। नाजनीन ने नात सुनाई, यहाँ पर फाइल नाजनीन है और सुनाई यहाँ पर फेल है, इसलिए ये फेले मारूफ है। नात सुनाई गई, यहाँ पर फाइल मौजूद नहीं है, गई जो है ये फेल है, इसलिए ये फेले मजहूल की मिसाल है। यानी जिसमें फाइल, यानी वो फेल जिसमें फेल का फाइल मौजूद हो वो फेले मारूफ कहलाता है, और फेल का फाइल जहां मौजूद ना हो वो फेले मजहूल कहलाता है। इस तरह यहाँ पर आज की क्लास का इख्तिताम होता है। आगे हम मजीद उर्दू के क़वायद मुख्तलिफ एग्जाम्स टेट PRT के लिए पेश करते रहेंगे। आप जरूर हमारी हिम्मत अफजाई के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।